Good afternoon, people. So the last thing that we were discussing was PVTG. And prior to that, we have talked about the class element. Okay? If I go by your syllabus, this is the first official topic of tribes. अगर मैं syllabus उठा के देखूं तो उसमें पहला टॉपिक यही है, definitional problem. तो अभी तक तो हम अपने interpretation से tribes पढ़ रहे थे. Now we are specifically talking about what is there in the syllabus. So to begin with, it is definitional problem. ठीक है? Now, as far as definitional problem of tribes are concerned, according to A.R. Desai, tribes can be classified based on their level of integration in the mainstream society. There is lack of unanimous definition as far as tribes are concerned. One of the definition of tribes as provided by A.R. Desai is that tribes can be classified on the basis of to what extent they have been integrated into the mainstream society. And this is what we have discussed even before. ठीक है? For example, it has been said, if you remember this, this was completely integrated, or you can use the term assimilated. That's totally your call. So this is nothing but A.R. Desai's perspective. अब अगर डेफिनेशन पे क्वेश्चन आए तो भी ये हो सकता है, या अगर क्वेश्चन आ जाए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स. सो वन ऑफ द बेसिस टू क्लासिफाई ट्राइब्स इज द एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. So now content is one, you have to decide where all this can be used. अब इसमें अगर हमें अभी नेक्स्ट पॉइंट है बैकवर्ड हिंदूज, जीएस घूरे का डेफिनेशन, उसमें भी यही सेम डायग्राम बना सकते थे, बस लास्ट में हिल ट्राइब्स डाल देंगे. हमने कल यही बात करी थी. सो दिस इज हाउ द डिफरेंट डेफिनेशंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड. क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, there is very high probability that you may get a direct question. Similarly, according to G.S. Ghure, tribes are defined as backward Hindus.
And if you remember, we did talk about how the process of merger has been taken place. Tribe caste continuum when I was teaching. And while teaching tribe caste continuum, I used the term completely Hinduized, partially Hinduized, and then hill tribes. So that a table could be formed, or you can replicate the same diagram. That's your call. But since the topic is definitional issue, we have to talk about the different definitions. Similarly, according to D.N. Mazumdar, tribes are defined as a social group which has common territory, which has common culture, language, and political structure. You want to write a statement-based definition, you could do that also. I am generally saying that from statement, the diagrams can be created. According to D.N. Mazumdar, tribes are defined as a social group which is characterized by common territory, culture, language, and political structure. Again, this is one of the definition of tribes. Similarly, according to B.S. Guha, anthropologist, tribes can be classified into racial groups. So can I say one of the bases of classification of tribes is race? One of the classification ka basis tha to what extent they have been integrated. That has been given by A.R. Desai. B.S. Guha has tried to classify tribes into different racial groups. उन्होंने basically ये कहने की कोशिश करी है that these tribes, they are distinct, and that basis of distinction is they belong to different races. For example, इन्होंने कहा एक होती है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स. इनके फीचर्स आपको दिख जाएंगे सेंट्रल ट्राइब्स में. संथल्स, गोंड्स, अरॉन्स, या फिर दूसरे होते हैं मोंगोलाइट. ये आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स. और तीसरा इन्होंने कहा नीग्रेटो. ये मिलेंगे सबकी अपनी डेफिनेशन है. हाँ, that is linguistic. So the point here is that the tribes can be classified into different racial groups. पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ये बताया जाए देखो इतनी चीजें रटनी है, नहीं. द क्वेश्चन अगर बनता है तो वो ये बनता है देयर एग्जिस्ट डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स.
with respect to tribes. You have to explain that problem. How can I explain definitional problem related to tribes when I do not have enough evidence to show that different thinkers, scholars have given different perspective with respect to tribes? अब जैसे अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वील वाइंड अप आवर ट्राइब्स ऑन ट्यूसडे, तो उसमें हम बात करेंगे जैसे बीके रॉय बर्मन या फिर एलपी विद्यार्थी या फिर एससी दुबे, दे हैव ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. उन्होंने जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन दिया है ट्राइब्स का. So different scholars have different ways of giving the understanding of tribes. Similarly, another is according to Mandelbaum. They have tried, Mandelbaum has tried to define tribes on the basis of characteristic attributes. So according to Mandelbaum, tribes have following features. Mandelbaum has tried to define tribes using their characteristic attributes. That tribes can be defined based on the following attributes, and the first point we have done enough number of times. देखो, शुरू की 2 क्लास ही हर टॉपिक में लगती है, उसके बाद इट इज मोर लाइक अ रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन. अब मैं जो भी बताऊंगी दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इट वुड बी मोर लाइक you are just making a revisit to what we have already discussed, obviously with few more additions, so I'll discuss that. Now, do you remember we clearly said कि क्योंकि subsistence economy होती है, there would not be any or very little surplus generation. Usually these societies are egalitarian, they are not stratified, hence they do not have well-defined hierarchy. We also did speak about how there is no concept of private property. So there is communitarian land holding. We have also talked कि इनके पास हमने इनके बोस का पर्सपेक्टिव किया था कि कोई फॉर्मल गवर्नमेंट वगैरह नहीं होती है. इट इज द एल्डर्स और द वाइज पीपल हु पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, बट दोज डिसीजंस आर नॉट इम्पोज्ड, दे आर बेस्ड ऑन द कंसेंसस बिल्डिंग. ये किया था ना. तो lack of formal organization.
और कल मैं आपको बता रही थी, इफ यू रिमेंबर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन form and substance. And I categorically remember I said कि form as in rituals and substance as in belief. And I gave you example also to tell how in other religion form and substance are different. But as we talk about tribals, there is no difference between form and substance. Whatever is your belief, that is only practiced in the form of rituals. If you believe that trees have spirit or soul and they need to be worshipped, you will worship trees. Is that clear? For example, संथल्स, for example, गोंड्स, उनके ना वो पैच ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें सेक्रेड ग्रोव कहा जाता है. जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, रिमेंबर कल हमने डोंगरिया कोंड का एग्जांपल किया था कि वो बिलीव करते हैं कि हिल फॉरेस्ट वगैरह में स्पिरिट रिसाइड करती है एंड दो स्पिरिट्स नीड्स टू बी वर्शिप्ड. तो उनके लिए जब वेदांता बॉक्साइट माइनिंग वाला इशू आया तो नियामगिरी हिल्स के कॉन्टेक्स्ट में इट वाज नॉट अबाउट इकोनॉमिक लाइवलीहुड, इट वाज नॉट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इट वाज आल्सो अबाउट देयर बिलीव्स. Is that very clear? So it was very close to their cultural assertion. इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. ठीक है? So there is no difference between form and substance. ये सब करा हुआ है, बस एक स्टेटमेंट नया है, सेगमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. इसको समझा देती हूं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, लिखने की जरूरत नहीं है. ये कहता है कि सपोज करो ये एक ट्राइबल ग्रुप है, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी है XYZ. हर एक ट्राइबल कम्युनिटी में ना मल्टीपल क्लैंस होते हैं. लेट अस से क्लैन A, क्लैन B, क्लैन C. हर एक क्लैन में डिफरेंट फैमिलीज होती हैं. लेट अस से फैमिली A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ये पूरी ट्री समझ आ रही है? ठीक है ना? क्लैन समझते हैं ना? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर ट्रेसिंग देयर लीनिएज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर विच कुड बी रियल और मिथिकल. इतना ठीक है? तो अब क्लैन में भी बहुत सारी फैमिलीज होती हैं. तो वो सेगमेंटरी स्ट्रक्चर ये कहना चाह रहे थे कि इस तरह से सेगमेंटेड होता है, आपस में ये डिफरेंट हैं, बट फॉर द आउटसाइडर्स दे आर सेम. इफ सपोज करो यहां से कोई XYZ कम्युनिटी है जो इनको चैलेंज करती है और किसी एक पर्टिकुलर क्लैन को या उस क्लैन में लेट अस से किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को चैलेंज करती है, ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर. दैट इज सेगमेंटरी नेचर ऑफ सोसाइटी. कि इंटरनल डिविजन्स हैं बट फॉर एन एक्सटर्नल सोसाइटी दे ऑल लुक द सेम because they stand united. That is segmentary structure of the society. Is it making sense? हाँ, इसमें आप इतना देख सकते हो जैसे कि ट्राइबल एंडोगेमी प्रैक्टिस होती है बट एट द सेम टाइम क्लैन एक्सोगेमी प्रैक्टिस होती है. तभी हम कहते हैं ना कि बहुत सारे ट्राइब्स का असिमिलेशन हो रहा है कास्ट में. दे आर अडॉप्टिंग कास्ट लाइक attributes and practices. So many tribes, they are practicing what is known as tribal endogamy. For example, Gonds, for example, Bheels. तो वो अपनी ही ट्राइब में शादी करते हैं, लेकिन क्लैन एक्सोगेमी. क्लैन में आप शादी नहीं कर सकते because you are believed to be the descendants of the same ancestor. So what you are practicing is clan exogamy. Is it making sense for everyone? That is just an information. Rest segmentary society समझ आता है कि what do you mean by segmentary nature of the society? एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना, आपको समझ आ रहा है ना क्या है? ठीक है. अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने पे जाऊं, रेस समझते हैं, पढ़ा है? This is my tree. इस ट्री को मैं नाम देती हूं रेस का. क्या मैं ये कह सकती हूं कि इस ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस हैं?
लेट अस से इस केस में ब्रांच है, देयर आर 5 ब्रांचेस एंड कैन यू सी कोई लंबी ब्रांच है, कोई छोटी ब्रांच है, इनको मैं कहती हूं ट्राइब्स। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं इन सब में कुछ कुछ छोटी ब्रांच भी है? और हर एक ब्रांच में अपनी एक छोटी ब्रांच है, इनको मैं कहूंगी दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेस, ट्राइब एंड क्लैन। एक रेस में मल्टीपल ट्राइब्स हो सकती हैं और एक ट्राइब में मल्टीपल क्लैन्स हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, सो दिस इज योर रेस, it can have multiple tribes and within multiple tribes you can have different clans. Clear है? ठीक है, तो भूलना नहीं कि what is the relation, क्योंकि तीनों टर्म्स आ गए हैं तो एक रिलेशन पता होना चाहिए। क्या यहां से प्रोसीड कर सकती हूँ? ठीक, एक पर्सपेक्टिव और लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बीके रॉय बर्मन, tribes are not only defined based on socio-cultural traits but also the adaptability to ecological settings. हमने बीके रॉय बर्मन पहले भी लिखा था, what are the factors which distinguishes tribes from rest of the population। उसमें हमने एक पॉइंट लिखा था इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, और उसमें हमने पर्सपेक्टिव किसका लिखा था? बीके रॉय बर्मन। पर्सपेक्टिव थोड़ी ना बदल जाएगा, पर्सपेक्टिव तो सेम ही रहेगा। तो अब जब अगली क्लास में पढ़ेंगे कि बीके रॉय बर्मन ने कैसे जोग्राफिकल स्प्रेड डिफाइन करा है, उसमें भी पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि वाइल डिस्कसिंग द जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइब ही मेड रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। कैन वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? ठीक है, अब दिक्कत ये आ रही है, इतनी सारी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशनल प्रॉब्लम आ क्यों रही है? तो हमें वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि व्हाई आर वी नॉट एबल टू अराइव एट वन सिंगल डेफिनेशन, व्हाई देयर इज नो यूनानिमिटी अमंग डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, सो इस बात को समझने के लिए अभी कुछ लिखना नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। अभी लिखना नहीं, अभी मैं बस समझाती हूं पहले।
क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्यों नहीं एक डेफिनेशन पर आ पा रहे हैं? तो उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया कि कुछ गैप है इन डिफाइनिंग द ट्राइबल्स एंड लेट अस नेम इट ट्राइबल गैप। पहली चीज, कोई कॉमन टर्मिनोलॉजी नहीं है। हमने पहला जब टॉपिक शुरू किया तब हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो यूजेस द टर्म शेड्यूल ट्राइब, बट इट नेवर डिफाइंस व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब. So basically there is no single official definition of what constitute a tribal population. So the problem lies with lack of official terminology while defining the tribes. दूसरा प्रॉब्लम आता है colonial legacy, जहां पे आप रेशियल क्लासिफिकेशन भी यूज कर सकते हो. हमने रिजले की बात करी हुई है पहले भी. तो 1901 में रिजले ने बोला दैट ट्राइब्स शुड बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेस. तो उनसे पूछा कैसे आप क्लासिफाई करोगे, तो उन्होंने कहा मैं नेजल इंडेक्स के हिसाब से क्लासिफाई करूंगा. ये मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, द ब्रेथ विथ एज इन द हाइट into 100, that is nothing but your nasal index. तो उस पे क्रिटिसिज्म आया कि पहली बात तो सिर्फ nasal index is not the racial marker, पहली चीज. दूसरा, आप ये मान के चल रहे हो that these tribes are not a social category. You are actually imposing what is known as biological determinism, कि आप किन facial features के साथ पैदा हुए हो. सो यू आर नॉट ट्रीटिंग देम एज सोशो कल्चरल कैटेगरी, यू आर ट्रीटिंग देम एज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. और तीसरा उन्होंने कहा कि आपने ट्राइब को स्टैटिक कैसे मान लिया. ऐसा भी तो होगा ना, ट्राइब इज माइग्रेटिंग टू सम अदर प्लेस, ट्राइब इज इंटरमिक्सिंग विद सम अदर पॉपुलेशन विच इज ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन हाउ दे आर appearing. So this kind of racial classification in itself was flawed. दूसरा, रिजले ने ना ट्राइब्स को एनिमिस्ट डिक्लेयर कर दिया. उन्होंने कहा हमने एनिमिज्म पढ़ा है, तो उन्होंने ये कहा एनिमिस्ट बेसिकली वही द सेम लॉजिक दैट दे बिलीव दैट एवरीथिंग इन द नेचर हैज अ स्पिरिट एंड दैट स्पिरिट नीड्स टू बी वर्शिप. तो आप सिर्फ उन्हें एनिमिस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, आप उनकी एक रिजिड लेबलिंग कर रहे थे. That tribes are animist and they are very distinct from those who are practicing the organized religion. पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने ट्राइब को भांत भांत के नाम देने शुरू कर दिए. ये बैकवर्ड हैं, ये प्रिमिटिव हैं, और अगर आपने कभी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सुना हो तो उन्हें क्रिमिनल भी कहा गया बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट दे यूज्ड टू परफॉर्म. ठीक है, सो द पॉइंट हियर वाज दैट कॉलोनियल लेगेसी कह लो या रेशियल क्लासिफिकेशन कह लो, इतनी रिजिड वे में डिफाइन करने की कोशिश करी कि कोई डेफिनेशन कभी बन ही नहीं पाई. इज दैट वेरी क्लियर? तीसरा आया इंटीग्रेशन वर्सेस आइसोलेशन. अब एक तरफ वेरियर एल्विन कह रहे हैं बहुत यूनिक हैं, इनके कल्चर को प्रमोट और प्रिजर्व करने की जरूरत है, तो इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में बिल्कुल मत आने दो. वहीं पे घूरे कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बैकवर्ड हिंदू हैं. अभी हम बात करेंगे असिमिलेशन इनटू द कास्ट. और फिर फाइनली नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं इनको तो इंटीग्रेट. तो इतना पॉलिसी कंफ्यूजन हो गया कि आइसोलेशन में छोड़ना है या इंटीग्रेट करना है कि कोई एक डेफिनेशन हम बना ही नहीं पाए. डिड यू गेट द पॉइंट? सिमिलरली बैकवर्ड वर्सेस एडवांस, ये कल हमने बात करी है क्लास एलिमेंट की. That reservation was introduced. Some people got access to higher education, political representation, job opportunity. Their status significantly improved. I gave you the example also, Minas. However, there are many tribal communities which are extremely backward. They have still not been able to reap the benefits of the opportunities offered by the government. So there is a constant discussion, backward versus advanced. तो एक definition में कैसे ले आए सारे tribes को? क्योंकि some tribes have advanced whereas majority of them are still thriving for a basic survival. Is that making sense? Then assimilation into caste. Backward Hindus का concept by G.S. घूरे कि आपको उन्हें अलग कैटेगरी मानना भी है या नहीं. और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अभी हमने बात करी. देयर आर मल्टीपल. फॉर एग्जाम्पल राजगोंड्स, उन्हें राजगोंड कहा ही इसलिए गया क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था ना क्षत्रिय स्टेटस. ठीक है ना, वैसे ही हमने बात करी हुई थी ना राजवंशी, उन्होंने क्लेम किया था ना राजपूत स्टेटस. तो द पॉइंट हियर इज वी नीड टू अंडरस्टैंड. भूमिज राज,
If you remember Surjit Sinha, ka tribe Rajput, Continuum, we did speak about it. So now there is constant assimilation into caste. So whether they have to be considered as a part of caste society or they have to be treated as a separate entity, ये confusion create हो गया. फिर क्या था? Lack of cultural uniformity. कोई कॉमन कल्चर ही नहीं. एक ट्राइब में हमने बात करी, मल्टीपल क्लैन्स है, हर एक क्लैन का अपना टोटम होता है. तो यहां तो ये भी वेरिएशन आ गया. लैंग्वेज का वेरिएशन है, बिलीफ सिस्टम का वेरिएशन है, व्हाट यू ईट, हाउ यू ड्रेस अप, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. कुछ ट्राइब्स हैं जिसमें पैट्रीलिनियलिटी है, कुछ ट्राइब्स हैं जिसमें मैट्रीलिनियलिटी है. सो इवन द किनशिप स्ट्रक्चर्स आर वेरी डिफरेंट. सो इन अ वे देयर इज लैक ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. दूसरा क्या है? ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक चेंज. जहां जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां वहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो उनका जो अपना नेचुरल हैबिटेट है वो तो चेंज हो रहा है. तो कुछ लोग तो थे जो अकस्टम हो गए, अडेप्ट कर गए, बट कुछ लोग हैं जो डिस्प्लेस हो गए. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी डू नॉट हैव अ कॉमन डेफिनेशन. फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन. रिमेंबर मैंने आंद्रे बेते का एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशियोलॉजिकल कैटेगरी बट एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, डिस्टिंक्ट कल्चर एंड शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करी. अब ये बताओ, क्या सारी ट्राइब्स को इन 3 पॉइंट्स में डाला जा सकता है? कितने ऐसे ट्राइब्स हैं जिसमें कोई शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है? दे आर वेरी वेल द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. देयर आर सो मेनी ट्राइबल कम्युनिटी विच आर एब्सोल्युटली नॉट isolated, and in fact since they have adopted, let us say, Christianity, or let us say Buddhism, or let us say Hinduism, or let us say caste practices, even the culture is no longer unique. इस पे भी तो आंद्रे बेते ने कहा, तो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि जैसे जैसे इंटीग्रेशन विथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी हो रहा है, उनका जो यूनिक डिस्टिंक्टिवनेस है दैट इज गेटिंग लॉस्ट. अब क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया इतना वेग है, इट क्रिएट्स ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ऑफ आइडेंटिटी. जैसे कि दो ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं. हमने बात करी थी ना कि जो ट्राइब्स होते हैं उनका एक अपनी इकोनॉमिक होता है, कोई शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग, गैदरिंग, पैस्टोरलिज्म, ये सब बात करी थी. अब दो कम्युनिटी हैं, जैसे एक है गद्दी और एक है गुज्जर. दोनों पैस्टोरलिज्म करते हैं. तो अब गुज्जर्स जो हैं वो एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं. डिड यू गेट द पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? अब क्या हो रहा है? एसटी स्टेटस इज नॉट अबाउट रिकग्निशन, इट इज नॉट अबाउट द हिस्टोरिकल आइसोलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ योर कल्चर. इट इज अ टूल फॉर कॉम्पिटिटिव रिजर्वेशन पॉलिटिक्स. So I'm not specifically saying Gujjar. जितने भी लोग ST status आज डिमांड कर रहे हैं, it is not because they are trying to preserve their culture. That might be one of the reason, but the sole main reason, according to these people, is that they are trying to compete in the politics of reservation. Is that very clear? और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कोई एक solid definition tribes की बनाई नहीं. Is that clear? अब यही वो हो रहा है अरावली पे लेकर. आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो. आप बोल रहे हो यहां माइनिंग नहीं करेंगे. क्लियर बताओ ना कि क्या लिखा है आपने. सो द पॉइंट हियर इज, जहां पर ये लूपहोल्स आ जाते हैं, जहां पे ये वो क्लियर कट डिफाइंड नहीं होता है, देन इट क्रिएट्स ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ऑफ आइडेंटिटी. सो नाउ यू नीड टू टेल मी, डेफिनेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ आई, ट्राइबल गैप. लेकिन अब क्वेश्चन आ जाएगा तो वी नीड एन आंसर. तो गिव द हेडिंग. राइट डाउन problems with respect to definition, problems with respect to definition in regard to the tribal communities in India, in regard to the tribal communities in India. In regard to the tribal communities in India. First, no universal definition of tribe. No universal definition of tribe. Within that, right, India lacks a single
India lacks a single universally accepted definition of a tribe. India lacks a single universally accepted definition of a tribe. Full stop. The Constitution uses the term scheduled tribes but does not define what a tribe is. But does not define what a tribe is. Next. Racial classification by Risley. Racial classification by Risley. Racial classification by Risley. Within that, right? In 1901 census, in 1901 census, Risley introduced a new way to classify people, based on religion and race. Based on religion and race. Full stop. He called tribals animist. And detached them from the mainstream religion. Detached them from the mainstream religion. Full stop. However, his method was criticized. और 3 points लिखना. Criticized on following grounds. A. Biological determinism. Static view of tribes. Second point. Static view of tribes. ये हमने डिस्कस कर लिया है सब. Biological determinism. Second, static view of tribes. And third, methodological weakness. एक स्टार बना के एक थिंकर लिखो. According to Andre Bete, racial classification ignore social and economic realities. Are we clear? Third लिखो, integration versus isolation. Within that, right? Verrier Elwin advocated preserving the tribal culture
Verrier Elvin advocated preserving the tribal culture by preserving the tribal culture by keeping tribes isolated from mainstream society. By keeping tribes isolated from mainstream society. Full stop. In contrast, ये टॉपिक पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एवरी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यू विल गेट अ क्वेश्चन, या तो घूरे और एल्विन का कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट पूछ लेंगे, या फिर इंटीग्रेशन एंड आइसोलेशन का पूछ लेंगे, दैट इज नेहरू एंड एल्विन का, नहीं तो नेहरू के इंटीग्रेशन के साथ ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम पूछ लेंगे. वही हमारा नेक्स्ट क्लास का एजेंडा है कि द एंटायर क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज, द 3 पॉलिसीज, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज विद इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी. ठीक है. In contrast, Nehru promoted integration while respecting tribal identity. Nehru promoted integration while respecting tribal identity. Full stop. This policy confusion affected how tribes are classified and understood. Affected how tribes are classified and understood. Full stop. Next. Backward versus advance. Backward versus advanced. Right down. अच्छा, अभी तो हम नॉर्मल लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पर्सपेक्टिव लिख चुके हैं, लेकिन अगर आपको आंसर लिखना होगा तो फॉर एग्जाम्पल घूरे का पर्सपेक्टिव, वर्जीनियस खाखा का पर्सपेक्टिव, एम.एन. श्रीनिवास का पर्सपेक्टिव, या फिर क्रिस्टोफ हाइमेंडॉर्फ रूरल प्रोलेटारिएट का पर्सपेक्टिव, आप वो सब डालोगे क्योंकि आपको उसमें थ्योरी डालनी है. मैं तो डिस्कस कर चुकी हूं, तो अभी हम सिर्फ एक लाइन में लिख के खत्म करेंगे. राइट डाउन. Some tribes have progressed socially and economically, while others remain marginalized. अरविंद कुमार का वो पर्सपेक्टिव याद है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच होती है, तो जो हाइपर लोकल वल्नरेबिलिटीज होती है दैट हैव बीन इग्नोर्ड, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो. राइट डाउन. नेक्स्ट लाइन. Hence uniform tribal policies are ignoring these differences. Uniform tribal policies are ignoring these differences. For example, Meenas of Rajasthan are better off as compared to Begas of Madhya Pradesh. Are better off as compared to Begas of Madhya Pradesh. Assimilation into caste. Next point. Assimilation into caste.
assimilation into caste. According to Ghure, tribes have been Hinduized. According to Ghure, tribes have been Hinduized. Tribes have been Hinduized, comma. F.G. Bailey, tribe caste continuum. F.G. Bailey, tribe caste continuum. अब तो सब क्लियर है. F.G. Bailey, tribe caste continuum, comma. Surjit Sinha, tribe Rajput continuum. Surjit Sinha, tribe Rajput continuum, etc. raises confusion between tribes and caste. Raises confusion between tribes and caste. अब इसमें आपको जिसका एग्जाम्पल देना हो, गोंड का देना हो गोंड का, भूमिज राज का देना हो भूमिज राज का, भील्स का देना हो आप उनका दे दीजिए, आपको जो एग्जाम्पल देना हो, लेकिन देना, ठीक है ना. सो इफ यू रिमेंबर, हम कई बार ये बात कर चुके हैं. हम हर टॉपिक पे कीवर्ड लिख रहे हैं, कीवर्ड के आगे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर एग्जाम्पल में या तो हम पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं या हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं या हम दोनों लिख रहे हैं. अगर तो 20 मार्कर है तब तो आप दोनों करना, बट अगर लेटर से 10 मार्कर है और मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं इसको छोड़ देती, लेकिन इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, नहीं तो मैं अपनी बात समझाऊंगी कैसे. मुझे हमेशा ऐसा लगता है अगर मेरे पास जगह कम है ना तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन पे मैं टाइम खराब नहीं करूंगी. तो अगर 10 मार्कर है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू ही कीवर्ड को समझा दो. लेकिन अगर 20 मार्कर है तो तीनों लिखना. और आप खुद नोटिस करना कि आप लिख तो आंसर बुलेट पॉइंट्स में रहे हो, लेकिन लग वो पैराग्राफ्स रहे हैं. आप खुद नोटिस कर लेना कि आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिखेंगे और आपके पास टाइम होगा 3 से 4 पन्ने लिखने का, आप आराम से आंसर बना सकते हो. ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो. कहां थे? लैक ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. लैक ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. लैक ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. India has above 700 tribal groups. India has above 700 tribal groups with different language, customs and lifestyles. Language, customs and lifestyles, full stop. Some are settled, comma, some nomadic, comma, some practice shifting cultivation, whereas some are casual labor. अब बताओ एक डेफिनेशन कैसे आएगी? आप बोल रहे हो ट्राइबल्स आर आइसोलेटेड, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर, ये फिट ही नहीं हो रहा. डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है, तो एक लास्ट लाइन इसमें लिखेंगे. डाइवर्सिटी मेक्स द सिंगल डेफिनेशन डिफिकल्ट. Diversity makes the single definition difficult. Diversity makes the single definition difficult. Clear है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे ट्राइब्स माइग्रेट होके चले गए हों
और अर्बनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में उनका अब अपने जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, उन सबसे कनेक्ट खत्म हो गया हो। या हम ये भी, अच्छा अभी नेक्स्ट में लिखवाऊंगी, अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनना। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन वी टॉक अबाउट थ्री थिंग्स: होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। तो ये हो सकता है ना कि दे आर गेटिंग होमोजेनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, there was some tribal who migrated to, let us say, Surat, because in their own area they were getting displaced, there was no job opportunity, तो सूरत की टेक्सटाइल मिल्स में काम करने गए और वहीं काम करते रहे। तो ऐसा हो सकता है ना अपने इंडिजिनस कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज सबसे कनेक्ट छूट गया हो, एंड नाउ दे आर गेटिंग homogenized, they are becoming assimilated in the mainstream society. दूसरा हो सकता है कि there is a student who came to study in Delhi University, started working in, let us say, Gurgaon, and speak English, सब कुछ है, but at the same time practice all the traditional customs, beliefs, and know the traditional language, the native language. So whenever goes back home, eating the native food, speaking the native language, performing those customs and practices, can this be an example of hybridization? ठीक है. Whereas there is some person who got access to social media, created Insta account, and now promoting the tribal products, not only to create awareness, but can I say the person is emerging as a cultural entrepreneur? So this is nothing but homogenization, hybridization and revival of local culture. Is that very clear for everyone? ठीक है. तो एक ना ऐसी एक स्टोरी बता देती हूँ कि there was this एक ग्रुप था कुछ अराउंड 3500 ट्राइबल वुमेन का. तो आपने वो पत्तल देखी है? तो वो जो सियाल लीफ वगैरह होती है उसकी पत्तल होता है. तो ट्राइब्स के पास एक्सेस तो होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट जब आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रोजमर्रा में बेच रहे होते हो या से, तो आपको उसका कुछ बहुत खास पैसा मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उसको एकदम रॉ फॉर्म में सेल कर रहे हो, कोई पैकेजिंग नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं, देयर आर ऑलवेज मिडिल मैन हु आर इन्वॉल्व, ठीक है. अभी क्या हुआ कि एक जर्मनी की कंपनी है लीफ डेमोक्रेसी, उसने इन लोगों को, ये जो विमेन थी, इन्होंने जो एसएचजी बनाया था, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, और मतलब ये समझ लो हर हफ्ते कई लाख वो पत्तल के जो थाली होती है वो इंपोर्ट करते हैं. क्यों? बिकॉज दे वांट टू सेव द इन्वायरमेंट. कितनी अजीब सी बात है, वी आर नॉट सेविंग द इन्वायरमेंट, trying to save when the product is available. लेकिन बाहर I think people are serious about saving the environment. तो उनको प्लास्टिक की प्लेट वगैरह यूज न करनी पड़े, तो वो हर बार उनसे वो पत्तल की प्लेटें मंगवा रहे हैं जिसपे सब खाना खाएं, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी नोज इट इज बायोडिग्रेडेबल. सो दिस इज हाउ दे प्लान. अब क्यों पॉसिबल हुआ? हर वो जो विमेन वहां से पत्ते कलेक्ट कर रही थी, उसकी प्लेटें बना, वो सब इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे, बट जब दे केम टुगेदर एज एन एसएचजी, now they have a collective bargaining and they got access to, and that is because of the platforms which have been generated. तो किसी ने मुझसे कल पूछा था शायद कि क्या हम अपने कल्चर को, ट्राइब्स प्रोटेक्ट करते हुए क्या उनका डेवलपमेंट हो सकता है? देखो, हो सकता है. Did you get the point? You have to just have the will, you have to have the right kind of platform, और उनको right kind of exposure देने की जरूरत है. Preserving the culture, you can actually develop. Is that very clear for everyone? तो ये example clear हुआ सबको? ठीक है, चलो. ऐसे list of examples बना के एक साथ दे दूंगी, अब एक एक dictate नहीं करा रही, बहुत time लेता है. क्या था हमारा next point? Geographical and economic change. Geographical and economic change. Within that, right? The old definition based on forest dwelling and primitive economy, the old definition based on forest dwelling and primitive economy is outdated. Full stop. Forest dwelling, old definition थी ना, forest dwelling and primitive economy is outdated. Full stop. Many tribes
many tribes are now living in urban areas, and have adapted to modern occupation. ये लिखो, administrative classification are vague. In fact, ये करो, administrative classification are vague plus political manipulation of identity. एक ही पॉइंट लिख देते हैं, plus political manipulation of identity. क्योंकि रीजन वही है. Administrative classifications are vague, which has led to political manipulation of identity. According to Andre Bethe, the administrative criteria to define tribes ऐसे लिख दो, geographical isolation, distinct culture and shyness of contact. Full stop. However, these are vague in nature. And open to political misuse. Example लिखो. For example, demand of ST status by Gujars. विद इन दैट राइट, मैं पॉइंटर्स दे रही हूं क्योंकि यार देखो, कोई भी डिमांड आती है उसका रीजंस होते हैं, ठीक है. राइट डाउन. फर्स्ट, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. उन्हें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, सो दे कंसिडर वन ऑफ द रीजन फॉर डिमांडिंग दिस स्टेटस इज सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. दूसरा वो कह रहे हैं, राइट डाउन, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन. जब वो अपने आप को दूसरे एसटी कम्युनिटी से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अगर राजस्थान में गुज्जर आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद मीनास, so there will be a feeling of relative deprivation. So one of the basic reason why you demand reservation or any other government benefit is when you are feeling relatively deprived. Is that clear? तीसरा लिखो, historical claim, that is, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ये भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी. तो हिस्टोरिकल क्लेम यही था कि इन्होंने बोला हम भी तो पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस करते थे, हम भी तो फॉरेस्ट लिंक कम्युनिटी हैं, तो अगर आप कह रहे हो प्रिमिटिव इकोनॉमी है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, तो हम भी तो एसटी स्टेटस में आएंगे. सो दैट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग. तो हिस्टोरिकल क्लेम, प्रोजेक्शन एज अ
and forest linked community. Projection as a pastoralist, comma, forest linked community. Next, political mobilization. Political mobilization. Political mobilization. हाँ, फोर्थ पॉइंट, इसी का फोर्थ पॉइंट चल रहा है. अब मैं आपको ये एग्जाम्पल्स इस तरह से लिखवा दे रही हूं, एक एग्जाम्पल डिटेल में. अब आप जिसने ये स्टेटस डिमांड किया उसका नाम हटा दो और एक दो स्पेसिफिक पॉइंट जैसे पेस्टोरलिज्म हटा दो. रिमेनिंग आंसर वुड बी द सेम. आप डिमांड क्यों करते हो? आप कोई हिस्टोरिकल एनालॉजी ट्रेस करोगे, आपके कोई सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के रीजंस होंगे, आपका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा होगा, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होंगे. बेसिक यही 5 पॉइंट्स होते हैं. तो हमने लास्ट क्या लिखा है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन विच इज इंटेंसिफाइड थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल, मैं रिपीट कर रही हूं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन विच इज इंटेंसिफाइड, मतलब बहुत बढ़ा देते हैं, इंटेंसिफाइड थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स. थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स. एंड लास्ट लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्विटी. एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्विटी which gives rise to identity claims. Administrative ambiguity which gives rise to identity claims. Clear है? Quick 2 minutes read पूरा जो आज पढ़ा है. ये बना लेना. कई बार ऐसा होता है पॉइंट स्ट्राइक नहीं कर रहा होता है, तो ये वाले निमोनिक्स तुरंत याद दिलवा देते हैं कि अच्छा जी से कुछ तो पढ़ा था. अब इतनी बार पढ़ा होगा तो याद आ ही जाएगा. साइड में जो मार्जिन बनाते हो ना उसमें लिख लेना ये. जैसे हमने कल की क्लास में पीवीटीजीज के लिए हेल्प बनाया था, वैसे ये ट्राइबल गैप.
ज्योग्राफिकल स्प्रेड पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए उसका कंटेंट रेडी है, तो वो मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगी, वो मैं आपको दे दूंगी. आई विल आस्क सर टू अपलोड इट टुडे. हम ट्यूसडे को मिलेंगे, उससे पहले बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है. एक और कंटेंट है जो दूंगी ट्राइबल से रिलेटेड, दैट इज पॉलिसीज ड्यूरिंग कलोनियल टाइम्स. उसमें बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कलोनियल टाइम्स पे जितनी भी पॉलिसीज थी ट्राइब्स को लेकर, मोर और लेस दैट वाज आइसोलेशनिस्ट इन द नेचर. तो अब हमारी क्लास का क्या फोकस रहेगा? टू एक्सप्लेन आइसोलेशन, असिमिलेशन, इंटीग्रेशन, देन व्हाट आर द कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस, वो सब जिस पे सवाल बनते हैं. कोई भी ऐसा कंटेंट जिस पे सवाल नहीं उतने आ रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, वो मैं सर को बोल के अपलोड करवा दूंगी. बस आप एक बार देख लेना, ठीक है. इतना लिखा सबने? ठीक है, प्रोसीड कर सकते. एक टॉपिक जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दे रखा लेकिन सवाल बनते हैं, दैट इज ट्राइबल आइडेंटिटी. और हमने फ्लो चार्ट में दे रखा है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ट्राइबल्स. उसमें हमने डेफिनेशनल प्रॉब्लम, पीवीटीजी, ट्राइबल आइडेंटिटी, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये 4 दे रखे थे ना. तो वील स्टार्ट विथ ट्राइबल आइडेंटिटी, ठीक है. पहले मुझे समझाने देना, फिर लिखना. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन. डोंट राइट दिस, मैं डिक्टेट कराऊंगी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं. लेट अस अज्यूम दिस इज द ट्राइबल कम्युनिटी और अ ग्रुप, ठीक है. एंड इन दिस दीज आर द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ दिस ट्राइबल कम्युनिटी. दे बिलीव दैट दे शेयर social, cultural, linguistic and historical attributes. आप बिलीव करते हो कि ये कॉमन चीज है जो आप आपस में शेयर कर रहे हो. इसकी वजह से आपने डेवलप कर लिया एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, that I belong to this tribal group and I am similar to these people because I am sharing with them socio-cultural, linguistic and historical features. And not only you developed a sense of belongingness, you also developed कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. एक कलेक्टिव सेंटिमेंट डेवलप होगा ना, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू ऑल आर सिमिलर. एंड व्हाई यू ऑल आर सिमिलर? बिकॉज यू आर शेयरिंग दीज एट्रीब्यूट्स. क्या हम ये कह सकते हैं, not only you have developed sense of belonging and collective consciousness, but also that you are आइडेंटिटी में 2 चीज का होना बहुत जरूरी है. एक बिलीव कि हम सब सेम हैं, और एट द सेम टाइम ये बिलीव कि हम बाकियों से अलग हैं. तभी आइडेंटिटी डेवलप होती है, वरना नहीं. इज दैट वेरी क्लियर? अब ये ट्राइबल ग्रुप की जगह एथनिक ग्रुप डाल सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप डाल सकते हैं, कास्ट ग्रुप डाल सकते हैं. आइडेंटिटी की डेफिनेशन थोड़ी ना बदल जाएगी.
ethnic identity defines as a feeling of sense of belongingness and collective consciousness among members of the ethnic group on the basis of shared socio-cultural, linguistic and historical attributes. Is the definition ready? Did you get my point, what I'm trying to say? Are you understanding what is identity? तो एक बहुत simple शब्दों में समझो. Identity has two aspects, that there has to be some commonality. It can be a common history, it can be a common ancestry, it can be a common territory, it can be a common culture. But there has to be some commonality. And based on that commonality, we should have a belief that we all are same, but at the same time, we are distinct from others. When this realization is there, then what you develop is known as identity. Now, this identity can be based on religion, it can be based on region, it can be based on language, it can be based on ethnicity, it can be based on tribe. Anything it could be. और आइडेंटिटी कभी फिक्स्ड नहीं होती, ये बढ़ती घटती रहती है. और यहाँ पे रोल आता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. मैं क्लियर कर दूं, दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय पॉल ब्रास. When he talks about ethnic mobilization, it has nothing to do with me. But the point here, did you understand that कभी-कभी आप देखोगे कि identity तो पहले भी होगी ना, because you are belonging to the same group. But अचानक से assertion of identity कैसे होने लगता है? That's because you are made to realize that someone else is doing better, and it is in your interest to come together to assert your rights. And maybe that deprivation is not real. It is only a fabrication in your mind, just by certain sections of the society to serve their own political administrative intent. तो इसको कहते हैं पॉल ब्रास की ethnic mobilization theory. Is it making sense for everyone? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. First heading डालेंगे concept. सिर्फ concept डालो. Tribal identity refers to sense of belonging. Tribal identity refers to sense of belonging and collective consciousness that members of tribal communities share, based on unique social, cultural, linguistic and historical attributes. Full stop. Next line में लिखो. It signifies their distinctiveness. It signifies their distinctiveness from the mainstream society. Full stop. एक लाइन और लिखो. It reflects indigenous worldviews. Practices and values. जब आप अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने जाते हो ना,
तो आप यू गो बैक टू योर इंडिजिनस कस्टम्स एंड वैल्यूज, नहीं तो आप अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करोगे कैसे? So it often reflects what was your indigenous value system, what was your indigenous customs and practices, what was your opinion about the world in the traditional form. That is what it reflects when you are asserting your identity. ठीक है? Now just hold. It is said there are 4 key elements of tribal identity. Keep making this. First, indigenous customs, rituals, beliefs, practices, जो लिखना चाहो. Indigenous language, the native language which the community speaks. Traditional land use and ecological practices. Community living and kinship system. रीजन है क्यों लिख रहे हैं. की एलिमेंट्स ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी. पहला, इंडिजिनस कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बिलीफ. ठीक है, अब वही किसी पर्टिकुलर टोटम को रेवर करना, वर्शिप करना, या लेट अस से नेचर को वर्शिप करना, बिलीविंग दैट इट हैज अ सोल और अ स्पिरिट. तो ये आपके इंडिजिनस कस्टम्स, प्रैक्टिसेस है. ठीक है, फिर आपकी लोकल लैंग्वेज, whichever language you speak. Then traditional land use and ecological practices. And finally, community living and kinship system. क्या हम ये कह सकते हैं these are the factors which enables the tribals to distinct themselves from others? यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक. ठीक है ना. और ट्राइबल आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि कुछ तो ऐसे यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस में यू हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. अब इसमें आप चाहे गोंड्स लिखो, चाहे भील्स लिखो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स लिखो, देयर हैव फॉर एग्जांपल संथल कम्युनिटी, दे हैव अ लैंग्वेज संथली. ठीक है, और उसको लिखने की उनकी एक अपनी अलग स्क्रिप्ट होती है, दैट इज नोन एज ओल्ड चीकी. ये वो देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट से बोरो नहीं करते हैं. संथली इज देयर इन देवनागरी एंड रोमन ऑल्सो, बट दे हैव देयर ओन स्क्रिप्ट. और ये सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट को में आप अगर अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हो, डू वी रियलाइज दैट इट इज एन असर्शन ऑफ योर कल्चर? It is a form of establishing tribal self-identity because language is an important component of your culture. ठीक है ना. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये important components हैं जो tribe को distinct करते हैं बाकी सारे sections से? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो factors बताओ जिसकी वजह से ये tribal identity impact हो रही है, तो क्या factors दोगे? 2 मिनट सोच के बताना
कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये जो ट्राइबल आइडेंटिटी है ये इम्पैक्ट हो रही है। ट्राइबल आइडेंटिटी मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कलेक्टिव कॉन्शियस इज नॉट बीन देयर। तो जो उनकी यूनिकनेस है, चाहे सोशो कल्चरल, हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक, वो इम्पैक्ट हो रही है। तो मुझे वो फैक्टर्स जानने हैं जो उन चीजों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर है ना, तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, हम कैपिटलिस्ट पेनिट्रेशन की बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिमेंबर कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्राइबल लैंड एंड रिसोर्सेस। तो एक पॉइंट तो हमने ये ले लिया कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट का इंटीग्रेशन हो रहा है। दूसरा ही सेइंग मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो अभी हमने ग्लोबलाइजेशन वाली बात कही, तो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वन आर्ग्यूमेंट इज दिस, वेरी वेल सेड बोथ ऑफ यू। और क्या हो रहा है? लैक ऑफ फंडिंग। अच्छा, लैंग्वेज जो है एंडेंजर हो रही है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसका एक रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि उसी की वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इनफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट योर ट्राइबल आइडेंटिटी, एंड वन ऑफ द बेसिस ऑफ योर आइडेंटिटी इज लैंग्वेज। विल टेक दिस पॉइंट। और क्या हो रहा है? अरे किसने बोला? हाँ, संस्कृताइजेशन एंड हिंदुआइजेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि उनका असिमिलेशन हो रहा है कास्ट में। तो जो उनका यूनिकनेस है ना, वो तो एरोड हो रही है ना। दे आर अडॉप्टिंग द रिचुअल्स ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी रादर देन प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिचुअल्स। वेरी वेल सेड, ये भी ले लेंगे। और बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आया है ना, उसी में डिस्प्लेसमेंट डाल देते हैं, बट पॉइंट एकदम वैलिड है। वही तो हुआ, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मार्केट इंटीग्रेशन, वन ऑफ द इंपैक्ट वाज लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, रूरल प्रोलेटराइजेशन, सारा पॉइंट डाल दो। समबडी वाज सेइंग समथिंग, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव? थोड़ा लाइन कंप्लीट करके बता, मतलब ठीक है। हाँ, तो उसकी वजह से ट्राइबल आइडेंटिटी इज गेटिंग इंपैक्टेड, एज एन दे वांट टू हाइड देयर आइडेंटिटी इफ देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। संस्कृताइजेशन उसमें डाल देंगे, ठीक है। और कुछ इंडिविजुअलिज्म, जब हम मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वन ऑफ द इंपैक्ट इज दैट इंडिविजुअलिज्म इज ऑन द राइज एंड ट्राइबल कलेक्टिविज्म इज डिक्लाइनिंग, वो आ जाएगा। जब हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं ना, वहां पे एक और पॉइंट डालेंगे, दैट इज रिलीजियस कन्वर्जन। क्योंकि जब संस्कृताइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज मोर असिमिलेशन इन द कास्ट, हिंदुआइजेशन इज असिमिलेशन इन द caste, but there is religious conversion also which is taking place. तो उनका unique tribal identity is getting negatively impacted. Are you understanding the point? And most importantly, the policies of the state. वो कैसे भूल सकते हैं? So that also needs to be written. Did you get the point? ठीक है, तो question कैसे बनते हैं? What do you mean by, let us say, tribal identity? What are the factors which are impacting tribal identity? Are you understanding? ठीक है, what are the problems associated with this? And then finally we can conclude. तो क्या लिखा अभी तक हमने? ये 4 points लिखे, एक एक example दे दो इनका. Write down. Indigenous customs में एक लिख लो. Nature worship among Gonds. Nature worship among Gonds. Nature worship among Gonds. Linguistic uniqueness में लिख लो. Santhali or Santhals uses Ol Chiki script, Ol Chiki script. Santhals, Santhali language है ना, तो Santhals they use Ol Chiki script as a key to cultural assertion, as a key to cultural assertion. Traditional land use में कल ही हमने किया है डोंगरिया कोंड वाला एग्जाम्पल, तो वो लिख लो. डोंगरिया कोंड have sacred groves and worship hills. Dongriya Kond
have sacred, they have created those sacred groves and worship hills in Niyamgiri. Worship hills in Niyamgiri. और लास्ट क्या है, किनशिप सिस्टम वाला पॉइंट है ना, तो उसमें लिख लो खासीज हैव मैट्रीलिनियल डिसेंट. खासीज हैव मैट्रीलिनियल डिसेंट. हैव मैट्रीलिनियल डिसेंट. क्लियर है? गिव द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्राइबल आइडेंटिटी. वो जो लैंग्वेज वाला पॉइंट था ना, वो पॉलिटिकल असर्शन एंड आइडेंटिटी मूवमेंट में ही आ जाएगा. जैसे कि एक किताब आई थी, संजीव बरुआ ने लिखी थी, इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ, आसाम एंड पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म. बेसिकली उसमें संजीव बरुआ हैज टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैज गिवन राइज टू बोडो लैंड मूवमेंट. और देखो, मैं एक बात जीएस में पढ़ाती हूँ, बट इसलिए क्योंकि जीएस में बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप कभी भी ये नहीं भूलना कि जब भी कोई मूवमेंट होता है, दैट हैपेंस ओनली फॉर टू रीजंस. वन इज योर लाइवलीहुड एंड अदर इज योर कल्चर. तो जो बोडोज को लगता था कि आउटसाइड पीपल आर इन माइग्रेटिंग इन देयर एरिया, और ये संजीव बरुआ की किताब में है, दैट दे बिलीव देयर इज इन माइग्रेशन. Now let us suppose I am living in this area, I belong to a certain community, and let us say approximately 60 to 70% of the population is consisting of us. That means we are in the majority. बात खत्म. But let us say that outsiders keep on in migrating due to various reasons. Maybe in their region opportunities were not there, resources were not there, population was already very dense. They kept on moving in our area. Now what happened? The overall population increased and our percentage in the population decline. Let us say we reduce to some 15 or 20%. So now we in our own land are becoming the minority. And in that case, there are people not only physically moving, they are also bringing their culture with them. So there is a belief that cultural erosion is happening. पहली चीज. दूसरा, when they are coming, they are not coming just for a tourist
purpose. They are coming here to settle down. That is why the livelihood generation would be stagnant. और बहुत हुआ तो कुछ percentage में job बढ़ जाएगी, but the claim for the jobs are very high. So in a way we start perceiving that these people not only diluted our culture, they are also taking away our jobs. Not only that, it may happen now that we are getting alienated from our own land. So the land is also getting alienated, the culture is also getting eroded, the livelihood opportunities are also being taken away, and let us say they become the registered person in our area. So they would also get the right to vote. So they have the ability to even influence the political dynamics of my region. तो फिर इन लोगों को अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करनी थी, इसलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं बोडोलैंड की. Did you get the point? इसीलिए लैंग्वेज वाला पॉइंट अलग से नहीं लिखा. That would be a part of political assertion and identity movements. Is this very clear? तो एक एक करके लिखते हैं. कलोनियल कैटेगरी. अब बस दोबारा हेडिंग नहीं डालना, अब 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखो. Britishers declared tribes as backward. Britishers declared tribes as backward, comma primitive, comma animist, comma non-Hindus, comma criminal. क्लियर हुआ? इसी में दूसरा पॉइंट लिखो. घूरे डिक्लेयर्ड देम बैकवर्ड हिंदू. आपको आइडेंटिटी में कंफ्यूजन दिख रहा है? घूरे डिक्लेयर्ड देम बैकवर्ड हिंदू. और तीसरा लिखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस ST identity became the basis for reservation. ST identity became the basis for reservation. तो जो लोग पहले अपने आप को क्षत्रिय आइडेंटिटी का कह रहे थे, अब वो अपने आप को ट्राइबल आइडेंटिटी कह रहे हैं. कैन यू सी द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आइडेंटिटी? One of the factor which has influenced the identity is affirmative action policy. Is it clear for everyone? देखो, सिर्फ पॉइंट को लिखने के लिए नहीं लिखना, समझ आ रहा है ना किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? ठीक है. सेकंड लिखो, संस्कृताइजेशन एंड हिंदुआइजेशन. उसमें लिखो, it has resulted in cultural assimilation. It has resulted in cultural assimilation and erosion of cultural assimilation and erosion of distinct tribal customs. Erosion of distinct tribal customs. For example, Rajgonds and Bhils have adopted, Rajgonds and Bhils have adopted Hindu rituals and festivals. Hindu rituals and festivals. See, I revisit again and again so that you remember. यहाँ पे M.N. श्रीनिवास और घूरे दोनों को लिखा जाएगा. M.N. श्रीनिवास को संस्कृताइजेशन की वजह से और घूरे को हिंदुआइजेशन की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट है, उसमें लिखो, penetration of capitalism and shift from subsistence economy. Penetration of capitalism and shift from subsistence economy has disrupted
traditional tribal livelihood, has disrupted traditional tribal livelihood. Full stop. Next, इसी में लिखेंगे, इसी में second point है, land alienation due to mining, comma, infrastructural projects, mining, comma, infrastructural projects. किसी ने डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट दिया था, सो दैट डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट इज दिस. एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि मुंडा कम्युनिटी, हो कम्युनिटी, दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ दीज माइनिंग प्रोजेक्ट. फिर आपको कल हम याद होगा हसदेव आनंद अदानी प्रोजेक्ट, सो दैट हैज ऑल्सो लेड टू द डिस्प्लेसमेंट. तो ठीक है, फिर पॉस्को भी था, ठीक है, वेदांता भी था, तो जो नाम लिखना चाहो वो लिख सकते हो. ठीक, इन नामों की ज्यादा वैल्यू आपके जीएस के पेपर में होगी. यहाँ पे तो फिर भी घूरे, श्रीनिवास, खाखा, ये सब ज्यादा मैटर करेंगे, लेकिन आपके जीएस में एक्चुअली एग्जाम्पल्स मैटर करेंगे, तो एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करना. ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज. अभी हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे ही हैं. माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रोल्स have reshaped their tribal identity, from forest dwellers to urban poor laborer. Forest dwellers to urban poor laborer. Identity change हो रही है ना? That is how the factors are affecting the tribal identity. तो पहला पॉइंट था colonial categorization, state policy, दूसरा था संस्कृताइजेशन एंड हिंदुआइजेशन, तीसरा ये, चौथा लिखो नेक्स्ट, पॉलिटिकल मूवमेंट वाला लिखो. political mobilization around tribal identity, political mobilization around tribal identity has led to the demand, देखो क्या डिमांड हुई है, या तो कोई एसटी स्टेटस डिमांड कर रहा है, या लेट अस से कोई ऑटोनॉमस काउंसिल्स डिमांड कर रहा है, या कोई सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहा है, या कोई ये कह रहा है कि आउटसाइडर्स को हमारे एरिया में मत आने दो, फॉर एग्जांपल इनर लाइन परमिट. तो सबकी डिमांड्स अलग है, लेकिन दे आर असर्टिंग देयर डिमांड्स. तो डिमांड फॉर एसटी स्टेटस कॉमा सेपरेट स्टेट ST status, comma, separate state and autonomous councils. वर्जीनियस खाका ने इस पे एक लाइन बोली थी. वर्जीनियस खाका सेड, ये जितने भी ट्राइबल आइडेंटिटी असर्शन मूवमेंट्स है ना, ये तीन चीजों के लिए हैं. फर्स्ट, दे आर डिमांडिंग recognition. Second, they are demanding resources. And third, they are demanding rights.
तो 3R करके याद कर लो। और ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ये लोग 3R के लिए लड़ रहे हैं, जो भी मूवमेंट होता है वो 3R के लिए ही होता है। आइदर यू आर डिमांडिंग रिकग्निशन, रिसोर्स और राइट्स। सो दिस 3R रूल ये वर्क करेगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 3R है ना, पहला R, सेकंड और थर्ड, इस तरह से भी करके लिख सकते हो। है स्टेटमेंट है वर्जीनियस खाका का। हमने वर्जीनियस कभी नहीं लिखा ना, नहीं हम हमेशा खाका लिख के छोड़ देते हैं, तो वर्जीनियस खाका। एक ना संजीव बरुआ वाला पॉइंट लिखवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो यहाँ या कहीं पे भी काम आ सकता है, तो एक फाइन वो लिख लेना एग्जाम्पल। ये लिखा, फिर इसी के बाद लिखो इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ फिर ऐसे कोलन डालना और लिखना आसाम एंड इट्स पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म। इट्स अ बुक बाय संजीव बरुआ। इसी में अभी हम लिखेंगे रीजन फॉर डिमांड फॉर बोडोलैंड। India Against Itself, Assam and its Politics of Nationalism. It's a book by Sanjeev Barua, where he has identified the reasons responsible for demand for Bodoland. Pointers लिख लो। Protection of land and identity, protection of land and identity, protection of land and identity. Second, political autonomy and self-governance, political autonomy and self-governance. And third, economic deprivation and unequal development. Economic deprivation and unequal development. Clear है? Next, religious conversion. बहुत डिटेल में नहीं लिखवा रहे, उतना ही लिखेंगे जितना समझा तो दिया ही है, तो कम। अकॉर्डिंग टू वेरियर एल्विन, रिलीजियस कन्वर्जन में लिखना, और ये लाइन हम पहले भी लिख चुके हैं। नॉट ओनली क्लास डिफरेंस बट ऑल्सो कल्चरल डिफरेंस, थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियर एल्विन, द रिलीजियस कन्वर्जन्स क्रिएटेड division between converted and non-converted members. Converted and non-converted members. Verrier Elvin said religious conversions, they created division between converted and non-converted मेंबर्स। अब चाहे वो कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जो भी हो, एक डिवाइड तो आ गया था। इज दैट क्लियर? लास्ट लिखेंगे अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अगर मैं होती आपकी जगह तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन लिखती, क्योंकि दोनों उसी के पॉइंट्स हैं, तो आप कुछ भी लिखना चाहो तो लिखो। ग्लोबलाइजेशन,
exposure to formal education, exposure to formal education and urban employment has led to mainstream participation and hybrid identities, full stop. Mass media and social media are reshaping the tribal consciousness and youth culture. क्लियर है? What if क्वेश्चन सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे आ जाए, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द ट्राइबल आइडेंटिटी? ऐसे में मेक श्योर करना कि आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। और जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे वो आप लिखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे आए तो क्या हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और मार्केट इंटीग्रेशन वाला पॉइंट लिख सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन ही तो अपने साथ कैपिटलिज्म लेकर आया ना, तो फिर तो लिख ही सकते हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? फिर लैंग्वेज क्यों इंपैक्ट हो रही है? क्योंकि होमोजेनाइजेशन हो रहा है, एवरीबडी इज आइदर स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज और इवन इफ दे आर स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज, दैट इज द रीजनल लैंग्वेज। सो एज अ रिजल्ट द नेटिव लैंग्वेजेस आर कमिंग अंडर थ्रेट। और क्योंकि इतना मार्केट इंटीग्रेशन हो रहा है, वो अपने ही एरिया से डिस्प्लेस, लैंड एलियनेशन, ऑल दैट, तो अगेन देयर आर मोर ऑफ असर्टिव मूवमेंट्स। तो जितना लिखा है वो सब ग्लोबलाइजेशन में भी लिख सकते हैं। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश रूल का आना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। है कि नहीं है? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ट्रेड, प्रोडक्ट। तो क्या हो नहीं रहा था? हमसे चीप रॉ मटेरियल ले जाकर हमको फिनिश प्रोडक्ट्स बेच रहे थे कि नहीं? So the point I'm trying to justify is that even in the globalization वाला आंसर ये सारे points लिख सकते हैं। ठीक है। Now write down another question. Write down one question. Critically discuss the issues with respect to tribal identity. Critically discuss the issues with respect to tribal identity. Full stop. 10 marker. Just a sec. Next लिखो. What are the definitional problems? What are the definitional problems concerning tribal communities and issues with tribal identity? Issues with tribal identity. Issues with tribal identity. 20 marker. एक ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क लिखो. Tribal identity in India is dynamic and contested. Shaped by different forces. Dynamic
and contested. आए दिन contest होती है ना, contested, shaped by multiple forces, full stop. While some tribes have assimilated, others continue to assert their distinctiveness. Others continue to assert their distinctiveness. Full stop. एक लास्ट लाइन लिखो. हाँ. While some tribes have assimilated, others continue to assert their distinctiveness. कुछ assimilate हो गए, लेकिन कुछ अभी भी कह रहे हैं कि हम distinct हैं and we need to protect that. एक लास्ट लाइन. According to Khaka, empowerment must go. According to Khaka, empowerment must go beyond administrative inclusion, to encompass cultural preservation, political participation, and economic equity. Cultural preservation, political participation, and economic equity. Are we clear on this? ठीक है? Now, did you get those assignment sheets? Write down the question. Write down the first question. What are the factors which shapes tribal identity? What are the factors which shapes tribal identity? Question mark. And briefly discuss why it is undergoing a change. Briefly discuss why it is undergoing a change. Clear है? 10 marker. Next question लिखो. कितनी शीट्स दी हैं? 4. एक और क्वेश्चन लिखो. Who are PVTGs? Question mark. Critically examine the problems faced by PVTGs. Critically examine the problems faced by PVTGs. So now you have 2 questions and we have 4 pages. तो दोनों 10 marker हैं. Both have to be written 1.5 कोशिश करना कि उसमें खत्म करो. Class assignment है, लिखो. अच्छा 4 pages है, तब तो एक और लिखो. हाँ सॉरी, 2 नहीं, 4 ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, 10 minutes लो, half an hour में खत्म करो. ठीक.
सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्लेन द डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स, वी हैव टेकन ऑल द PYQs, एक्सप्लेन द डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स explain the definitional problems concerning the tribal communities in India. Explain the definitional problems concerning the tribal communities in India. 10 marker. Exactly half an hour. Finish 3 questions and submit. तो अविनाश पुराना सब हो गया? आज तीसरी क्लास थी, पिछले 2 में असाइनमेंट नहीं था, तो बोल देना तीनों एक एक दिन के हैं। मतलब फीस दी है, पैसे वसूलो, 2 दिन नहीं लिखा, अब आज तीनों लिखो और तीनों चेक करवाओ, आंसर मैं दे दूंगी, ठीक है, लेकिन तीनों लिखो, ठीक है। असाइनमेंट कोड दे देना ना वहां पे। ग्लोबलाइजेशन के 3 पॉइंट्स, होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। होमोजेनाइजेशन मतलब यूनिफॉर्मिटी, आई थिंक तुम वही पूछ रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ग्लोबल प्लस लोकल, देन रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर, रीअसर्टिंग योर ओन कल्चर, सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का संथली लैंग्वेज में आना, दैट इज रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर।